Hello students, today we'll start water treatment numerical, that how to convert a given substance in terms of CaCO3 equivalent. So first we will see what is the difference in between temporary and permanent hardness. Temporary hardness also called as carbonate hardness. So temporary hardness is caused by the presence of dissolved bicarbonate of calcium and magnesium and other heavy metal salts. So हम एक example देख लेते हैं. Calcium bicarbonate, this is responsible for temporary hardness. Magnesium bicarbonate, this is also responsible for temporary hardness. Calcium carbonate or magnesium carbonate. So all the carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium, these salts are responsible for the temporary hardness, and the salts of permanent hardness are, this is due to the presence of chloride and sulfates of calcium, magnesium, iron and other heavy metals ion. So if we talk about the permanent hardness को हम non carbonate hardness भी बोलते हैं. तो permanent hardness के लिए responsible salt होंगे magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate, calcium nitrate, magnesium nitrate. So all these salts are responsible for the permanent hardness. So now we will see how to convert a given substance in terms of CaCO3 equivalent. So CaCO3 is the highly insoluble salt in water. इसलिए हम जितने भी salts हमको given होंगे, calcium chloride, nitrate, sulfate, carbonates and bicarbonates, इन सबको हम CaCO3 की terms में calculate करेंगे, क्योंकि जो calcium carbonate होता है ये water में highly insoluble salt होता है. So formula होगा equivalent of CaCO3 का, equivalent of CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance into 50 divided by chemical equivalent of hardness producing substance. इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, mass of hardness producing substance, suppose इसको मैं X से अगर indicate कर रही हूँ, so X into chemical equivalent of CaCO3 divided by chemical equivalent of given substance. ठीक है. अब केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. ठीक है. एन फैक्टर का मतलब क्या होगा? हमको +2 ऑक्सीडेशन वाले सॉल्ट्स अगर दिए हुए हैं तो उसका एन फैक्टर 2 होगा. अगर +1 ऑक्सीडेशन के सॉल्ट्स दिए हुए हैं तो उसका एन फैक्टर 1 होगा. जैसे +2 का एग्जांपल अगर हम लेते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो ये क्या होगा? कैल्शियम इसमें +2 है और 2 क्लोरीन है. ठीक है. तो इसका जो एन फैक्टर है वो है 2. तो एन फैक्टर 2 है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज द केमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है. एक फॉर्मूला तो ये हो गया, X into chemical equivalent of CaCO3, chemical equivalent of given substance. अब यहाँ chemical equivalent of CaCO3 कितना होता है? तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कैल्शियम का कितना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, तो 48. तो टोटल ये जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 100. एन फैक्टर क्या कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? तो ये +2 पे है तो ये होगा डिवाइडेड बाय 2. सो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज 50, इसलिए हमने यहाँ पे 50 यूज किया. ठीक है. तो या तो फॉर्मूला होगा X इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस. एक दूसरा फॉर्मूला होगा X इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 divided by molecular weight of given substance. Okay, this is only applicable when you are using +2 oxidation state substance. Okay, जब भी हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सब्सटेंस यूज करेंगे तो हमको केमिकल इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो मॉलिक्यूलर वेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कौन कौन से एग्जांपल होंगे? हम कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट हम इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है.
CaCO3 यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। तो जितने भी +2 ऑक्सीडेशन वाले जितने भी सब्सटेंस है उसमें डायरेक्टली दोनों कैल्शियम कार्बन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस हम यूज करेंगे, तो हम उसको करस्पॉन्डिंग CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है तो हम मॉलिक्यूलर वेट यूज नहीं करेंगे, उस टाइम हमको केमिकल इक्विवेलेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, सपोज हमने अगर NaCl लिया हुआ है, ठीक है, तो NaCl में सोडियम पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका जो n फैक्टर है 1 होगा, तो हमको इसमें केमिकल इक्विवेलेंट यूज करना पड़ेगा। सो x इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 तो होता है 50 डिवाइडेड बाय NaCl का कितना होगा, Na का सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होगा 35.5, सो 58.5। सो अगर हमको NaCl दिया हुआ है जिसको उसके CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन सब्सटेंस इनटू 50 डिवाइडेड बाय 58.5। ठीक है, तो ऐसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट गिवन है और इसको हमको इसके करस्पॉन्डिंग CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, और ये x मिलीग्राम या कुछ भी एडेड है वाटर में। सो x इंटू फर्स्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस HCO3 का होता है टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 61 आता है, 61 इंटू 2 तो कितना हुआ ये 122 प्लस 40, सो दिस इज 162। ओके, तो कितना हुआ x इंटू, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 डिवाइडेड बाय 162। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का कितना निकाला था हमने 100 बाय 162। ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 100 बाय 146। तो यहाँ पे 100 तो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 एंड 162 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये सारे के सारे हम देख सकते हैं जितने भी सॉल्ट्स यहाँ पे गिवन है सबके सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिए हुए हैं। यहाँ पे ये भी कैल्शियम +2 में है, मैग्नीशियम भी +2 में है, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम +2। तो जितने भी यहाँ पे सॉल्ट दिए हुए हैं तो ये मैग्नीशियम +2 या कैल्शियम +2 की फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट, तो डायरेक्टली हमने इनके मॉलिक्यूलर वेट यूज किए हुए हैं। ठीक है, हम चाहें तो केमिकल इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। इसका केमिकल इक्विवेलेंट में अगर केमिकल इक्विवेलेंट की टर्म्स में अगर हमको करना है तो क्या होगा, तो फर्स्ट हमको देखना है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, तो 100 बाई 2 हो गया 50। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो 162 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 81। तो कितना हुआ अगर कन्वर्ट करने के लिए x इंटू 50 डिवाइडेड बाय 81, तो वही टर्म्स आ गई। हमने इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया, तो डायरेक्टली हम इसको 100 बाय 162 लिख सकते हैं। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास गिवन सॉल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि +1 में करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हमको करना है और NaCl +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये +2 में रहेगा, ये +1 में रहेगा, इसलिए हमको दोनों को ही केमिकल इक्विवेलेंट की टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए वाटर सैंपल कंटेन फॉलोइंग डिजोल्व सॉल्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट 8.1, सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट 8.1 दिया हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 29.2, कैल्शियम क्लोराइड 11.1, मैग्नीशियम सल्फेट 6 मिलीग्राम पर लीटर। फाइंड आउट टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 3 चीजें इसमें करनी है। सबसे पहले तो गिवन जो भी सॉल्ट्स हैं उनको ये देखना है कौन कौन से +2 में है, तो ये भी +2 में है, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है और ये भी +2 में, सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमको इसमें देखना है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन कौन से सॉल्ट्स रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के, वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा। सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट
and magnesium bicarbonate. These salts are responsible for the टेम्परेरी हार्डनेस. ठीक है, परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन से आएंगे? कैल्शियम क्लोराइड परमानेंट में आएगा. ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी परमानेंट में आएगा. ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, ये दोनों हो गए परमानेंट हार्डनेस के लिए, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हार्डनेस आएगी. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हमको करना है इनको इनके करस्पॉन्डिंग CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमको दिया हुआ है डिजोल्व सॉल्ट 8.1. ठीक है, तो वो इसको इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. 100/162 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट. तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 5 मिलीग्राम पर लीटर. ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम इसके CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे. डिजोल्व सॉल्ट हमको दिया हुआ है 29.2. इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था 100/146 होता है. जब हमने इसको कैलकुलेट किया देन इट कम्स 20 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, तो अगर हमको टेम्परेरी हार्डनेस देखनी है तो टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे. तो टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू 20 + 5 इज इक्वल टू 25 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, सेम हमको कैल्शियम क्लोराइड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैल्शियम क्लोराइड हमको दिया हुआ है 11.1. इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/111 से. तो ये हमारे पास आ गया 10 मिलीग्राम पर लीटर. सेम मैग्नीशियम सल्फेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 6 दिया हुआ है, 6 मिलीग्राम पर लीटर. इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर वेट 100/120 होता है. जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया हमारे पास 5 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, तो ये दोनों सॉल्ट जो होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. सो 10 + 5 इज इक्वल टू 15 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, जब ये तो 25 तो हमारे पास हो गया, 25 तो हो गया हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस, 15 हमारे पास हो गया परमानेंट हार्डनेस, और जब 25 + 15 को हमने ऐड किया तो टोटल आया 40 मिलीग्राम पर लीटर इज दी टोटल हार्डनेस. यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. 5 मिलीग्राम फॉर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 20 मिलीग्राम फॉर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. दोनों को हमने जब ऐड किया 5 + 20 तो ये 25 मिलीग्राम आया. दिस इज टेम्परेरी हार्डनेस. 10 मिलीग्राम पर लीटर फॉर कैल्शियम क्लोराइड, 5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर मैग्नीशियम सल्फेट. दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आया 15 मिलीग्राम पर लीटर. सो टोटल हार्डनेस इज 25 + 15 इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर लीटर. Okay students, I hope you understood this video. Please do like and subscribe my channel.